Hello students, welcome to the economics class. Let's take a quick review as we understood the meaning of money credit creation and its process. Now the next topic is central bank and its function. So here let's begin. Central bank is also known as RBI, Reserve Bank of India. Let's take to give you the some important hidden truth of RBI, like when it is formed, who is the first governor, and where the headquarter of it RBI, है ना, who founded the RBI, who founded the Reserve Bank of India. So you must know about the history of RBI also. Then we will discuss the topic. This, it was first founded by British Raj. RBI founded under the British Raj, and it was established in 1st April 1935 with the first British governor Sir Osborne, Osborne, Sir Osborne Smith. He is the first British governor of RBI and the first Indian governor Mr. C.D. देशमुख. अभी करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई तो आपको पता होगा डॉक्टर शक्तिकांत दास. इससे पहले आपके रघुराम राजन जी थे. उससे पहले आपका डॉक्टर डी सुब्बूराव. आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, द लिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई. यू मस्ट नो, it is very important for you also. So what is the meaning of central bank and what are the functions performed by the central bank? Here let's begin. Central bank of a country is the apex monetary institution. ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानी जाती है, रेगुलेटरी बॉडी मानी जाती है. इट रेगुलेट ऑल द बैंक, पब्लिक, ईदर पब्लिक और द प्राइवेट बैंक, and frame the various monetary policies and the fiscal policies. So which work as a pivot for the entire banking system in the economy. Central bank as an apex monetary institution not only play the leadership role in the banking system. यहाँ पर सेंट्रल बैंक एक सबसे बड़ी संस्था नहीं है, एक मॉनेटरी संस्था नहीं है, जबकि वो एक लीडरशिप रोल भी प्ले करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम में. बट ऑल्सो पुट अ कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक ऑल्सो. जैसे हमने आपको बताया, इट रेगुलेट ऑल द बैंक, प्राइवेट और द पब्लिक बैंक. सेंट्रल बैंक फ्रेम द वेरियस पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूट द मॉनेटरी पॉलिसीज. मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू द मनी सप्लाई. आपको हमने मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी बताया था, मनी सप्लाई की हमने डेफिनेशन भी आपको बताई थी, क्रेडिट मनी क्रिएशन भी हमने आपको समझाया. तो ये आरबीआई क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है. जिस तरह से हमारा अकाउंट क्या है, हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है, इसी तरह से गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ होता है, आरबीआई. मतलब कि गवर्नमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, खरीदना बेचना जो होता है, परचेज एंड सोल ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज एंड ट्रांजेक्शन जो होती है, वो किसके थ्रू होती है, आरबीआई के थ्रू होती है. और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है आपको पता होगा, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है. सो RBI is responsible for maintaining the stability and the economic growth in the economy. आपको पता होगा हमारे अभी करंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन. इससे पहले राजनाथ सिंह थे. अब हम आपको बता दें इसकी डेफिनेशन. सेंट्रल बैंक हैज one function which operate to control economy, supply of money and credit. According to the Samuelson, central bank has one function, it operate to control economy, supply of money and credit. Simple. इसी तरह से आप बहुत सारी definitions पढ़ सकते हैं. According to the Nock or D. Koch, a central bank is a bank which constitute the apex of the monetary and the banking structure of its country.
तो आप कोई सी भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम विच डेवलप द रेगुलेट एंड कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट इन द कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये सेंट्रल बैंक के डेफिनेशंस हुए। अब हम आपको कुछ बता दें कि सेंट्रल बैंक के और कमर्शियल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, difference between the central bank and the commercial bank: it is the apex bank of the in the country which control all the other bank. Commercial bank is part of the banking system and work under the control of central bank. Okay, second one, the motto जो है central bank का क्या है? To operate the banking system in the national interest. देश की तरक्की के लिए, देश का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक पूरे इंटायर सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। इट डज नॉट वर्क विद द प्रॉफिट अर्निंग मोड, प्रॉफिट अर्निंग, ओके, मोटो। तो यहाँ पर हमने कहा है सेंट्रल बैंक कभी भी उसका मोटो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, ठीक है, सोशल एंड दी नेशनल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमर्शियल बैंक टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बताएं नंबर्स की अगर हम बात बताएं तो लिविंग द यूएसए वेयर द 12 सेंट्रल बैंक आर वर्किंग, एवरी कंट्री हैज़ इट ओन वन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है। जैसे यूएस में आपका फेडरल रिजर्व है, इंडिया में आपका आरबीआई है ना। इसी तरह से आपके नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि हर कंट्री में अभी तक 12 हैं, नंबर ऑफ़ 12 रिजर्व बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर बता, हर कंट्री का अपना एक रिजर्व बैंक होता है। यहाँ पर क्या है, कमर्शियल बैंक में अ कंट्री हैज़ अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ कंट्री में क्या है, नेशनलाइज कंट्री है हमारी, उसमें नंबर ऑफ बैंक आपको मिल जाएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक। अब आ जाता है ओनरशिप की बात करते हैं। तो आरबीआई इट इज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका क्या अंडर सबऑर्डिनेट है, उसके अंडर काम करता है, ठीक है, उसके लिए काम करता है। एंड द कमर्शियल बैंक, दीज बैंक आर बेसिकली बैंक ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आपको पता होगा, दोज हु आर होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी, है ना। तो बैंक में पैसा लगाते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं। इट मे और मे नॉट बी स्टेट ओन्ड, ठीक है, वो सरकारी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं और शेयर होल्डर्स का भी हो सकता है। यहाँ पर आ जाता है बहुत सारे आपके डिफरेंसेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन बी क्लास डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। पब्लिक डीलिंग में अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्पेसिफिक सिचुएशन इट हैज़ नो डायरेक्ट डीलिंग विद द पब्लिक। आरबीआई कभी भी पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता है, ना ही पब्लिक का पैसे को डिपॉजिट करता है और उनको लोन देता है। मगर कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोगों को डायरेक्टली डील करता है। बैंकर में क्या कहते हैं, इट इज़ अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब कि किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। एंड इट इज़ अ बैंकर टू द पब्लिक, ठीक है। नोट इशू में क्या रहता है, इट हैज़ अ फुल अथॉरिटी और फुल मोनोपोली राइट टू इशू द नोट्स एंड कॉइन्स। कॉइन्स कौन करता है, आपका 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑल द पेपर करेंसी इशू बाय द आरबीआई। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोट की वैल्यू तभी होती है जब तक उसमें गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो जाते। अगर उसके गवर्नर के सिग्नेचर नहीं है उसमें, तो नोट की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको हम बता दें, इट एक्ट लाइक अ कस्टमर टू द सेंट्रल बैंक, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर नहीं, इट इज फुल मोनोपोली राइट ऑफ द इशूइंग नोट ऑफ द इशू में यहाँ जाता है। इट इज अ बैंकर टू द पब्लिक, इट कैन नॉट बी इशू दी नोट। यहाँ पर बैंकर, यहाँ पर क्या है, कमर्शियल बैंक के पास कोई राइट नहीं है इशू करने का। लोन की अगर हम बात करें, इट इज़ अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक फॉर इनकैशमेंट ऑफ द बिल। यहाँ पर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि एकमात्र सहारा लास्ट में बैंक, अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती है किसी भी बैंक से या एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो वो किससे लोन लेता है, किससे पैसा लेता है कमर्शियल बैंक, आरबीआई से पैसा लेता है, ठीक है। आरबीआई उसकी मदद करती है, इसीलिए हमने लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला है उसको। एंड इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक फॉर इनकैशमेंट ऑफ बिल। जो भी उसके बिल्स वगैरह होते हैं उसको इनकैशमेंट करने में, और अगर हम बात करें उसको सेटलमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट एक्ट लाइक अ कस्टमर टू द सेंट्रल बैंक। यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरह से कस्टमर के लिए क्या है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक, ठीक है। कंपटीशन में क्या कहते हैं, देयर इज नो कंपटीशन ऑफ द कमर्शियल बैंक
विद द कमर्शियल बैंक, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, मगर डिफरेंट कमर्शियल बैंक हैव कॉम्पीट विद ईच अदर। यहाँ पर ये है। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इट इज़ अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये अपने पास रखता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसको देखते हुए रिजर्व कितना मेंटेन करना होता है, जितना हमारे पास ट्रेजरी है, ठीक है, चाहे वो ट्रेजरी इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड हो, सिक्योरिटीज़ हो, मनी हो, डिफरेंट करेंसीज के ना में हो, उसके बेसिस में आपको कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन बी डील विद द फॉरेन एक्सचेंज ऑन द परमिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक डील करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं, ठीक है, किसके परमिशन से, आरबीआई के परमिशन से, ठीक है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज और द फॉरेन एक्सचेंज। एडवाइजरी बॉडी की अगर हम बात करें, इट एक्ट एज अ एजेंट एडवाइजरी इन द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल मैटर्स। ये गवर्नमेंट का क्या है, एडवाइजरी एजेंट है, और ये एडवाइजरी क्या है, ये इसकी कोई एडवाइजरी नहीं है, इट हैज़ नो एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस किसको दे सकता है, कस्टमर को दे सकता है, टू इन्वेस्ट हिज और आर आइडल मनी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये हमने क्या पढ़े, इसके कुछ डिफ्रेंशिएशन पढ़े सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के। इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, कमर्शियल सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मोनोपोली नोट इशू, मतलब कि फुल अथॉरिटी होती है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। दूसरा है बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये एक्ट करता है एक मीडिएटर के थ्रू और एजेंट के थ्रू, किसका, गवर्नमेंट का। बैंक ऑफ द बैंक, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है, सभी बैंकर है ये, किसका, बैंकों का, मतलब कि आरबीआई रेगुलेट ऑल द बैंक्स। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट परफॉर्म दी फंक्शन। और आप इसमें ये बोल सकते हैं कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आपको हेल्प करता है, कस्टडी मतलब कि अपने पास रिजर्व रखता है फॉरेन एक्सचेंज का। इफ़ द गवर्नमेंट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज, देखो आप क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जब इंपोर्ट करती है कुछ सामान कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, तो द गवर्नमेंट हैव टू बी पे दी। आपको पता होगा कि हमको क्या करना होता है, उस कंट्री की करेंसी में ही पेमेंट करना होता है। तो क्या है, आरबीआई क्या करती है, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी को क्या करती है, रिजर्व करके रखती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल भी करता है, फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, यहाँ पर हम बात करें क्लियरिंग हाउस का मतलब यह होता है, डिफरेंट बैंक्स के क्या होते हैं, जो बैंक्रप्सी होती है, इंसॉल्वेंसी होती है अकाउंट होल्डर्स की, उनको भी क्या करता है, क्लियर करता है, ठीक है। एक बैंक का सेटलमेंट भी करता है, डिस्प्यूट्स को भी सेटल करता है, ठीक है। अदर फंक्शंस में डेवलपमेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है आरबीआई। और अदर फंक्शंस कौन कौन से हुए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा, रिलेशन विद द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी उसका रिलेशन होता है, वर्ल्ड बैंक के साथ होता है, अदर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वो रिलेशन मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है आपका सर्वे ऑफ बैंक्स ऑल्सो एंड अरेंजिंग द सेमिनार्स ऑल्सो। तो ये क्या है, अदर फंक्शंस में आ जाता है। तो हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात करें पहले फंक्शन की, मोनोपोली इन दी नोट इशूइंग में क्या आ जाता है, in the modern times central bank alone has exclusive right to issue the note in every country of the world। सेंट्रल बैंक के पास ही एक अथॉरिटी होती है, ठीक है। नोट इशू बाय द सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर थ्रू आउट द कंट्री। यहाँ पर क्या होता है कि जो नोट्स हैं आपके 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 1000 तो है नहीं, अब आपका क्या है 500 और 2000 है। तो ये सारे के सारे क्या है, सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकता है और सेंट्रल बैंक ही उसको प्रिंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बैंक, अब क्या है, नोट इशू बाय द सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर थ्रू आउट द कंट्री। अब उसके पास क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब कि ही आरबीआई हैव होल सोल अथॉरिटी टू इशू दी मनी। मगर यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई मन मर्जी से ही सारा पैसा प्रिंट क्यों नहीं करता है या क्यों नहीं सप्लाई करता है, वो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे स्टेट्स है, अब डिफरेंट स्टेट्स, कितने स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव इन अ कंट्री, इंडियन इकोनॉमी 29 है। अब 29 स्टेट्स में कितनी डिमांड है मनी की, उसके हिसाब से वो प्रिंट करेगा। कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने आने वाले समय में करना है, उसके हिसाब से करेगा, डिमांड को देखते हुए करेगा, है ना। और इवन ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज जितनी है हमारी, उनकी डिमांड को देखते हुए करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है आरबीआई की, आरबीआई इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या करता है, रुपए को, पैसे को प्रिंट करता है और इशू करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा फिस्कल डेफिसिट जितना है उनको देखते हुए क्या करेगा, प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अकॉर्डिंग टू दी डे कॉक
Almost everywhere, the privilege the note issue is associated with the origin and development of the central banking. Central banking country enjoy the monopoly right note issue, which is the following merits. जैसे कि हम बात करें, impart the uniformity in monetary system, एक uniformity आती है, control on the paper currency become very simple. Central bank can charge money supply, उसके पास होलसेल सप्लाई चार्ज है मनी सप्लाई का. मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन द मनी सिस्टम. इट रेज द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द मॉनेटरी सिस्टम इन द इकोनॉमी. ठीक है, यहाँ पर पब्लिक कॉन्फिडेंस को वो क्या करता है, गेन करता है बिकॉज ऑफ फॉर्मुलेटिंग द वेरियस मॉनेटरी पॉलिसीज. सेंट्रल बैंक कैन ईजिली कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी. वही क्रेडिट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो आरबीआई ही फिक्स करती है. एलआरआर जो हमने आपको बताया था, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, उसके बेसिस में ही वो क्रेडिट कंट्रोल करती है. इट बिकम सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग द इंटरनल एक्सटर्नल प्राइस स्टेबिलिटी ऑल्सो. इंटरनल एक्सटर्नल मतलब कि यहाँ पर आ जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं. सेकंड आ जाता है बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. ये नेक्स्ट फंक्शन है. इसके अंदर हम अगर बात करें, जनरल पब्लिक गवर्नमेंट ऑल्सो नीड दी वेरियस सर्विसेज. अगर हम बात करें गवर्नमेंट की बात करें, पब्लिक की बात, बैंक्स की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, उनको भी रिक्वायरमेंट होती है बहुत तरीके की सर्विसेज की. जैसे कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, परफॉर्म करती है वेरियस फंक्शन लाइक अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. एज अ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर. जिस तरह से कमर्शियल बैंक वेरियस फंक्शंस क्या करते हैं, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, उसी तरह से आरबीआई क्या करती है, बैंक को भी वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अब क्या क्या करती है, जैसे कि बैंकर टू द गवर्नमेंट. एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक परफॉर्म द वेरियस फंक्शन लाइक अकाउंट. It maintain the account of the government transaction and submit the detail to the government from time to time. गवर्नमेंट के अकाउंट को वो क्या करती है, मेंटेन करती है, टाइम टू टाइम उसको रिपोर्ट देती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देती रहती है कि कितना किसको पेमेंट जा रहा है, कौन सी कंट्री में जा रहा है, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, पेमेंट के बारे में हो गया, डेप्ट और लोन के बारे में हो गया, है ना. इसी तरह से आप बोल सकते हो पेमेंट ऑफ डेप्ट एंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, लोन टू दी गवर्नमेंट, कितना लोन दिया है सरकार को. तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिकॉर्ड बना के चलती है, रिपोर्ट बना के चलती है. नेक्स्ट फंक्शन है एज अ एजेंट टू दी गवर्नमेंट. एजेंट टू दी गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, इट एक्ट एज एन एजेंट टू दी गवर्नमेंट. ऑल द डीलिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक. बिसाइड सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्फ्रेंसेस. तो हमने कहा कि गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल बैंक क्या करती है, एक्ट लाइक एजेंट टू दी गवर्नमेंट. ठीक है, इट डील ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट. जो भी है, जो भी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक ही होती है. वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक करता है. ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करती है खुद. So the central bank represent the government in various international institutions and conferences. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. कैसे, सेंट्रल बैंक एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन द वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि कितना हमारा कर्ज हो गया है, ठीक है, डीवैल्यूएशन, हमारी मनी की वैल्यू कितनी गिर गई है ना, डीवैल्यूएशन करना है. ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताता है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताता है. तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी है किसकी, गवर्नमेंट को. ये सारे हमने फंक्शंस पढ़े. अब आ जाता है आपका थर्ड फंक्शन, आ जाता है बैंक ऑफ द बैंक. ये जो हमने इससे ऊपर जो जितने भी सब फंक्शंस पढ़े हैं वो किसके अंदर आ जाता है, आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है. अब आ जाता है हम बैंक ऑफ द बैंक, मतलब कि इट रेगुलेट ऑल द बैंक. इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बैंक टू ऑल द अदर बैंक इन द कंट्री. सेंट्रल बैंक हैज़ ऑलमोस्ट सेम रिलेशन विद द ऑल अदर बैंक एज अ कमर्शियल बैंक हैज़ विद द कस्टमर. जिस तरह से कमर्शियल बैंक के अपने क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं कस्टमर्स के साथ, उसी तरह से बैंक आरबीआई के भी सारे बैंकों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं. सेंट्रल बैंक कीप अ पार्ट ऑफ द कैश बैलेंसेस ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या करता है, कुछ कैश बैलेंस को मेंटेन करके चलता है इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं. ठीक है, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है. ठीक है, ऑल द कमर्शियल बैंक हैज डिपॉजिट विद अ व्यू टू मीटिंग द लायबिलिटी ऑफ दिस बैंक इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. और यही सीआरआर क्या होता है, कुछ पोर्शन जो अमाउंट होता है वो बैंक आरबीआई के पास मेंटेन सबमिट करना पड़ता है या मेंटेन करके चलना पड़ता है. और वही अमाउंट क्या होती है, हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. ड्यू टू दिस act, central bank is also called a custodian of cash reserve. These cash balances are kept by the commercial bank into two way. A part of the cash balances with themselves, या वो कुछ कैश बैलेंस का कुछ पोर्शन वो अपने पास रखेगा, या फिर अनदर पार्ट विद द सेंट्रल बैंक एज डिपॉजिट, या तो वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देगा. बैलेंस कैप्ट विद द सेंट्रल बैंक आर ऑल्सो ट्रीटेड एज कैश बैलेंसेज बाय द कमर्शियल बैंक. तो ये सारे फंक्शन हम इसमें हमने पढ़े बैंक टू दी
बैंक ऑफ द बैंक्स। अब आ जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में अगर हम बात करें, एक मात्र ऑप्शन है किसका, बैंक का। जैसे एज अ बैंकर टू द बैंक द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इन अदर वर्ड, इन द केस ऑफ कमर्शियल बैंक फेल टू मीट दियर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर उसको कहीं से आर्थिक स्थिति मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती है किसी भी बैंक से, कहीं से भी, अदर सोर्स से भी, तो वो किसको अप्रोच करता है, आरबीआई को अप्रोच करता है। दे कैन एज अ लास्ट रिजॉर्ट अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक फॉर द लोन एंड एडवांसेस। सेंट्रल बैंक असेस द सच बैंक थ्रू द डिस्काउंटिंग ऑफ प्रूफ सिक्योरिटीज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसको डिस्काउंटिंग कर देता है। डिस्काउंटिंग का मतलब ये नहीं होता उसको डिस्काउंट कर देना, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है उसको कैश कर देना, ठीक है, कैश कर देना ऑन दी बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि सिक्योरिटीज क्या होती है, किसको रखनी पड़ेंगी, कमर्शियल बैंक को रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस में वो क्या करता है, आरबीआई उनको कैश कर देता है। इन द रियलिटी ड्यू टू दिस डिस्काउंटिंग फंक्शन सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैंकर ऑफ द बैंक, एंड सेंट्रल बैंक कन्वर्ट द लिक्विड सिक्योरिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक into the cash and provide the liquidity to the commercial बैंक थ्रू इट्स डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। इस तरह से वो क्या करता है, उनको कैश कर देता है। अब आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आ जाता है। सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हेल्पफुल इन eliminating the difficulties of balances of payment and in maintaining the stable exchange। अब अगर हम बात करें कि सेंट्रल बैंक क्या हेल्प करता है, फॉरेन एक्सचेंज में भी रिजर्व मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो एलिमिनेटिंग द डिफिकल्टीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इट इज़ एन स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होती है जो हम मेंटेन करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। स्टेबल एक्सचेंज रेट को भी हेल्प करता है, मतलब कि एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन करते हैं हमारी कंट्री में, वो भी उसको भी स्टेबल करने में हेल्प करता है। फॉर मिनिमाइजिंग द फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक बाय और सेल द फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट। वो किस तरह से स्टेबल करता है, या तो वो खरीद लेगा या तो वो बेच देगा, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप अच्छे से समझेंगे इस वाले पॉइंट को। नेक्स्ट आ जाता है क्लियरिंग हाउस, फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। लास्ट इसमें आ जाता है सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। बाय क्लियरिंग द हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक वी मीन सेटलिंग द क्लेम ऑफ द वेरियस बैंक अगेंस्ट ईच अदर विद द लीस्ट यूज ऑफ कैश। यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे की जो इश्यूज होते हैं बैंकों के, या फिर आप कह सकते हो उनके क्लेम्स जो होते हैं सेटल करने के लिए, उसमें हेल्प करता है। सिंस ऑल द बैंक हैव देयर रिजर्व एंड अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, देयरफॉर इट इज एन ईजी एंड लॉजिकल स्टेप फॉर इट to act as a settlement or clearing house for the other bank. Clearing house function of central bank are the following advantages, like it economizes the use of the cash by bank while settling the claim or counter claim. It increases the commercial relation with the bank. It keep the central bank fully informed about the liquidity position of bank each bank। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, बहुत ईजी है, बहुत कम कॉस्ट में आप कैश कर सकते हो, कैश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमाइज द यूज़ ऑफ कैश बाय बैंक वाइल सेटलिंग द क्लेम। किसके लिए, क्लेम सेटलमेंट करने से पहले आप क्या कर सकते हो, कैश का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, या काउंटर क्लेम करने से पहले। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया है कि इट इंक्रीज द कमर्शियल रिलेशन विद द बैंक। आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल रिलेशन को आप बढ़ा सकते हो। तीसरा को बोला गया है कि इट कीप द सेंट्रल बैंक फुली इन्फॉर्म अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ईच बैंक। यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है किसी भी बैंक की लिक्विडिटी की पोजीशन किस तरह से है, बैंक्रप्सी तो नहीं हो रही है या बंद तो नहीं हो रहा है, तो उसकी लिक्विडिटी परफॉर्मेंस वगैरह जो होती है वो उसको बता सकता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का जो फंक्शन है आपका, आरबीआई क्या करता है, लोन दे देता है लॉन्ग टर्म, किसको देता है, कमर्शियल बैंक को देता है, जिसको हम किसके फॉर्म में बोलते हैं, रेपो रेट के फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल रिफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी इन अकॉर्डिंग विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मोर एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट मनी देन द नेसेसरी लीड टू सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन कर देगा अगर सैंक्शन आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो वो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, अपने पास तो पैसा रखेगी नहीं, वो भी लोगों को देगी। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, और लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन होने के का कॉज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है कमर्शियल बैंक कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है डेवलपमेंट फंक्शंस की। अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होता है, आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म दी डेवलपमेंट फंक्शन लाइक it extend the organized banking system and establish the new financial institutions which provide the loan to the farmers and the citizen of the country to undertake the various economic activity which help to
reduce the unemployment situations and the conditions, and help to make strengthen of a country. सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो इट इंश्योर द सफिशिएंट मनी सप्लाई फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटी। आपको रेगुलर मनी सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो आपको सप्लाई कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अडॉप्ट द चीप मनी पॉलिसी फॉर इंक्लूडिंग इंड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। चीप मनी के मतलब क्या होता है यहाँ पर? चीप मनी पॉलिसी का जो मतलब है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात है। इंटरेस्ट रेट भी आपका क्या होगा? रीजनेबल होगा, जिससे आप लोन ले सकते हैं और उसको लोन लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, जिसको लोगों को क्या कर रहा है? इनकरेज कर रहा है कि आप लोन लीजिए और वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपनाइए या बिजनेस करिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज खोलिए, कंपनी खोलिए, ये वाली बात बोल रहे हैं। इट मैनेज दी याला पॉइंट पे क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है, विद द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इट इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर। फिफ्थ वाला पॉइंट बोल रहा है, इट मैनेज द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंशियल फॉर एक्सेलरेटेड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये हमने सारे पॉइंट्स पढ़े। अदर फंक्शंस में हम आपको बता देते हैं। डेटा कलेक्ट करता है, रिलेशन विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर्वे ऑफ बैंक एंड अरेंजिंग सेमिनार्स। ऑल दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द आरबीआई। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क इट। थैंक यू।